Let us today start with mutation and its mechanism. जैसा कि मैं आपको बच्चे पहले कन्वे कर चुका हूं in the earlier video, the mutation is change in specific rotation to an equilibrium value. Mutation क्या है? Change in specific rotation of an optically active substance to an equilibrium value in aqueous solution. For example, when either of alpha or beta form is dissolved in water, their specific rotation changes to equilibrium value of 52.7 plus 52.7. Alpha form has a specific rotation of 119 degree. Beta form has a specific rotation of plus 19 degree. When either of the form, that is alpha or beta, is dissolved in water, the specific rotation changes to an equilibrium value. Equilibrium value वो कितनी है बच्चे? 52.7. किसी भी फॉर्म को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, द स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 119 डिग्री फॉर्म दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस टू 52.7. बीटा को डिसॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस टू 52.7. व्हाई द स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट? एक्सप्लेनेशन इज it is due to conversion of one form into other form through open chain structure. One form into other through open chain structure till equilibrium mixture of two is obtained. Direct नहीं है, direct जैसे एरो दिया वैसे नहीं, मतलब through open chain, through open chain. तो why mutual rotation occur? Mutual rotation occur क्यों होती है बच्चे? Because glucose exists in two forms, alpha and beta, and it occurs due to conversion of one form into the other form. Till कब तक ये प्रोसेस चलता? टिल इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू इज ऑब्टेन्ड, है ना, जब तक दोनों की क्या ना बन जाए बच्चे, इक्विलिब्रियम. लेट अस हैव मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल रोटेशन. ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे. आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल रोटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूचुअल रोटेशन इज बिलीव्ड टू अकर बाय कंसर्टेड मैकेनिज्म. कंसर्टेड मतलब जो बॉन्ड, जो आपका ब्रेक होगा, रिंग ओपनिंग होगा, वो एक ही स्टेप में हो जाएगा. Mutual rotation is believed to occur by concerted mechanism. The cyclic hemiaster ring opens up due to concerted attack by base and water. Concerted attack by base and water. एक ही समय पे अटैक होगा. The process involves simultaneous removal of proton, that is by the base, from hemiastral hydroxyl group and donation of proton to the ethyl oxygen. ये बच्चे मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं. What is being said? Say we have taken the alpha form. This is the alpha form. Alpha form. Alpha form, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, here the OH is on right side. Alpha form. This is alpha D glucose. Alpha D. What is being said? The removal of proton by the base. Water is amphoteric, it acts as base. Removal of proton by the base from OH, this acetal OH, and donation of proton to the ethyl oxygen. जब ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा OH से, this bond will become free and this will go to this side. When the balancia of carbon get completed because of movement of this bond break. बैलेंसी जब इसकी इधर से पूरी हो रही है तो ये बॉन्ड इसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी बैलेंसी एक्सेस में हो जाएगी. डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू द इथरल ऑक्सीजन. दिस इज द इथरल ऑक्सीजन. This is the theory. So this occurs simultaneously. What is being said? This process occurs simultaneously. Concerted mechanism जिसको हम कहते हैं, simultaneously. और जिस समय ये इसको रिमूव करता है H को, उसी समय
इथरल ऑक्सीजन को जो हमारा वाटर है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। So this is happening simultaneously. So the process involves simultaneous removal of proton from the hemiasteral hydroxyl group, OH group, hemiasteral hydroxyl. मैंने कल शायद आपको बताया था या नहीं बताया था कि ये बच्चे देखें, this OH is different from these OH. These OH. Why it is different? It is hemiasteral OH formed from aldehyde. अगर आप बाकी OH को देखें, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन आगे दोनों साइड किससे अटैच है? कार्बन से। बट ये वाला OH जिस कार्बन से अटैच है उसकी एक साइड ऑक्सीजन है। So it has a more minus I effect on it. This OH has a more minus I effect on it, and hence it is more acidic. So that is why water, that is the base, removes this proton, not the proton of these OH. So this hemiasteral OH is different from the other OH. It is having more acidic nature on its hydrogen. So the simultaneous removal of proton from hemiasteral OH and donation of proton to the ethyl oxygen by water occur simultaneously. एक ही स्टेप में होता है, it occurs simultaneously. ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर 10 फॉर्म, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बच्चे वापस जाता हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखें, रिंग ओपन हो गई, ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, CH डबल बॉन्ड O, CH OH, CH OH, CH OH, CHOH, ये वापस आ गया ना बच्चे, आप O नेगेटिव ले लिया, H पॉजिटिव, OH बन गया, CH2OH. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर then recloses. ओपन चेन स्ट्रक्चर बच्चे क्या करेगा, फिर रिक्लोज करेगा, इट विल फॉर्म द रिंग अगेन, फिर से ये रिंग बनाएगा, but when it form the ring again, now as carbonyl group is planar, carbonyl group planar है बच्चे, so the OH on the first carbon can have two configuration, because OH can attack from front, it can attack from back. It is a planar structure, carbonyl group. So it can go to alpha as well as beta. ये बच्चे अल्फा में वापस भी जा सकता और बीटा भी बना सकता। ये यहां पे जो बनेगा, it can form beta, and hence the mutual rotation occur, that is change in specific rotation occur. पहले प्योर अल्फा थी, अब अल्फा एज वेल एज बीटा, अब सोल्यूशन में दोनों आ गए। वाटर ने रिंग को ओपन कर दिया, रिंग ओपनिंग के बाद रिंग क्लोजिंग हुआ, जब रिंग क्लोजिंग हुआ वी कैन गेट अल्फा एज वेल एज बीटा, दोनों मिल सकते, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। Therefore specific rotation is bound to change, क्यों? क्योंकि अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 1190 डिग्री, 119 डिग्री अल्फा की, 119 डिग्री, और बीटा की है प्लस 19 डिग्री। सोल्यूशन में अब दोनों है, तो नेट रिजल्ट विल बी ऑफ द टू, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन कहीं बीच में आएगी, हेंस द स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस, दैट इज म्यूचुअल रोटेशन ऑकर। इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना था, दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन। ये बच्चे ये आगे, अब यही चीज अप्लाई होती है बच्चे बीटा फॉर्म पे, कि व्हेन यू डिसॉल्व द बीटा फॉर्म इन वाटर, जब आप बीटा फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, सेम प्रोसेस विल अकर, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द हेमिएस्टल OH को थोड़ा सा बच्चे हम ओपन अप कर लेते हैं, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हेमिएस्टल OH, अगर हम बीटा से चले, एंड
and release of proton to the ethyl oxygen. ये बच्चे ये वाला ethyl oxygen occur simultaneously. हाँ जी बच्चे, I am not audible. Am I audible? तो बच्चे क्या होगा? What will happen? The abstraction of proton from the hemiacetal OH and release of proton to the ethyl oxygen occur simultaneously. जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ होगा बच्चे. And the ring will open. Ring open हो जाएगी. ये open हो गई बच्चे ring. अब बीटा से चल रहे हैं, है ना? Then what will happen? Again, the ring formation will occur by attack of the C5OH on the aldehyde group. Formation of hemiacetal. अब क्या होगा? अब जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इट कैन गो टू अल्फा एज वेल एज बीटा. इसके पास दोनों ऑप्शन है, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप इज प्लेनर. तो आप इधर साइड से चले, चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज साइड से चले बच्चे, चाहे आप बीटा डी ग्लूकोज साइड से चले. व्हाट विल हैपन? देयर विल बी चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन. Either of the form you dissolve. This is due to conversion of one form into the other form through open chain structure. And when equilibrium mixture is attained, the open chain form is 0.02%. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, जिस तरीके से वाटर रिंग ओपनिंग में हेल्प करता, इन द सेम फैशन इट हेल्प इन रिंग क्लोजिंग. द वाटर रिमूव्स H from here and releases proton to this oxygen. So in the same fashion, it helps in formation of ring. क्योंकि इसको O नेगेटिव को चाहिए H पॉजिटिव, और इस H को रिमूव करने के लिए भी कोई चाहिए, वो भी वाटर करता. तो वाटर being amphoteric act as acid as well as base. It helps in ring closure as well as ring opening. And when the equilibrium mixture is attained, the open chain structure percentage is 0.02%. equilibrium mixture क्या होती है बच्चे? जिसमें जो आपके रिएक्शंस हैं वो चल रहे होते हैं, बट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. यानी कि जो इसकी परसेंटेज है वो फिक्स हो जाएगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर आने के बाद. वो कब आएगी? जब स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो जाएगी बच्चे? 52.7 डिग्री. ठीक है ना? तो ये है बच्चे, ये देखें यहां लिखा है, ये देखिए बच्चे, since water is amphoteric, since water is amphoteric in nature, has both acidic and basic properties, mutual rotation takes place readily in aqueous solution. वाटर दोनों काम करता है, एसिड का भी और बेस का भी. ठीक है बच्चे, ये देखिए बच्चे, ये मैंने जो दिखाया आपको, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने बाण ऊपर से दिखाया है ऐसे, ये यहाँ से दिखाया है. आप भी ऐसे कर सकते हैं. देखें, मैंने पूरे CHOH का स्ट्रक्चर कंप्लीटली दिखाया था. मैं उधर ही चलता हूँ वापस. कंफ्यूज नहीं होना बच्चे. जैसे आप कहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे उसमें स्ट्रक्चर में शो किया है, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से उधर ऐसे दिखाया है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, ऐसे. ठीक है ना? अब इनको तीन को जोड़ के दिखाया है, लेकिन बेहतर यही रहता कि जैसे मैंने दिखाया लिख के वैसे दिखाया, है ना? पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है. लेकिन कोई जब भूल जाता है, उसे पता नहीं रहता कि मैंने HOH किधर लगाने, राइट या लेफ्ट, तो उस केस में वो इस ऑप्शन का फायदा उठा सकता है. तो यहाँ दिखाया है ये वाला ऑप्शन. ठीक है, वाटर ने देखिए यहाँ से H रिमूव किया, इथल सॉरी हेमीएस्टल OH से H पॉजिटिव निकाला, और मैंने कहा कि दिस OH इज डिफरेंट फ्रॉम अदर OH. आई हैव शोन द रीजन आल्सो, एक्सप्लेन टू द रीजन आल्सो. बाकी जितने भी OH हैं 4, उसमें से डिफरेंट है. ठीक है, और जो इथल ऑक्सीजन है वाटर ही ने उसको प्रोटॉन दिया. ठीक, वी गॉट दिस. उसके बाद बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है ना, वाटर ही हेल्प किया रिंग क्लोजिंग में. सेम प्रोसेस देखिए दूसरी साइड से शुरू हुआ. बीटा, इधर हमने अल्फा फॉर्म डिसॉल्व की है, इधर बीटा. अगर बीटा से शुरू करेंगे
then also we get equilibrium mixture, alpha से शुरू करेंगे, then also we get equilibrium. This was the concept of म्यूटा रोटेशन. अब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई हैं बच्चे कि रिंग स्ट्रक्चर जो एल्डिहाइड के रिएक्शंस हैं वो कैसे एक्सप्लेन करता. जब रिंग बन गई एल्डिहाइड ग्रुप तो रहा नहीं, तो देन हाउ द रिएक्शंस, जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्साइन, सॉरी हाइड्रोक्सिलामीन, ग्लूकोज रिएक्ट विद this phenyl hydrazine. The reactions of aldehyde which glucose gives, how they can be explained. मुझे इसका आंसर सीधा साधा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब बनेगा उसमें 0.02% क्या रहेगा, ओपन चेन फॉर्म. 36% अल्फा, 64% बीटा, 0.02% ओपन चेन फॉर्म रहेगा. तो ओपन चेन फॉर्म रिएक्ट करेगा ना. और आपको लीड चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये रिएक्ट करेगा, ये स्कोर बनाएगा, ये रिएक्ट करेगा, ये स्कोर बनाएगा. The reaction of the open chain form with HCN, with hydroxylamine and with phenylhydrazine is irreversible. Irreversible है ये रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन irreversible है. तो ये रिएक्ट करता जाएगा, ये और बनाता जाएगा, ये रिएक्ट करता जाएगा. तो मतलब कैसे ग्लूकोज, हाउ द ग्लूकोज गिव्स reactions of aldehyde, that can be explained with the help of this 0.02% open chain form. लेकिन एक रिएक्शन ऐसा है बच्चे जो ग्लूकोज नहीं देती. मैंने बताया था आपको, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड शिप्स रीजेंट. उसका कारण क्या है, वो क्यों नहीं देती. चलिए वापस चलते हैं, फिर यहीं से दिखा देता हूं. ये देखिए, व्हाट इज द रीजन. रिएक्शन विद से सोडियम बाइसल्फाइड, व्हाई ग्लूकोज डज नॉट गिव दिस रिएक्शन. एल्डिहाइड ये रिएक्शन भी देते और ये वाले भी देते. ये क्यों देते, मैंने बता दिया कि ग्लूकोज ने ये रिएक्शन कैसे दिए. हाउ द ग्लूकोज गिव्स द ओपन चेन फॉर्म रिएक्ट विद HCN, हाइड्रोक्सिलामीन एंड फिनाइलहाइड्राजीन. रिएक्शन आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल है मतलब जितना ग्लूकोज रिएक्ट कर गया वापस नहीं आने वाला. जब वो वापस नहीं आएगा तो फिर अल्फा और बीटा ओपन चेन और बनाएंगे, जितना रिएक्ट करता जाएगा और बनता जाएगा. अब बात आती है बच्चे किसकी, सोडियम बाइसल्फाइड. द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम बाइसल्फाइड इज रिवर्सिबल. ये बच्चे रिवर्सिबल है. ग्लूकोज ओपन चेन रिएक्ट करेगी, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा. जब यहाँ आ जाएगा तो ये और क्यों बनाएगा. मतलब जितना थोड़ा सा रिएक्ट किया उसी पे रिएक्शन बंद हो जाए. 0.02% है ये बच्चे, 0.02%. तो 0.02% में से थोड़ा सा रिएक्ट कर गया और इक्विलिब्रियम आ गया, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल. यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन रिवर्सिबल है. तो फिर ये स्कोर क्यों, यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया है, ये अब चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी स्कोर नहीं बनाएगा. रिएक्शन विल स्टॉप इसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ. तो मामूली सा सोडियम सल्फा बाइसल्फाइड ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, मामूली सा, जो हमें पता भी नहीं चलेगा. हम कहेंगे कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं किया. ठीक है. जबकि HCN से पूरे का पूरा रिएक्ट किया. क्यों, ग्लूकोज ओपन चेन इससे रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. ये रिएक्ट किया इससे, ये खत्म हो गया, इसने और बनाया, ये खत्म हो गया, इसने और बनाया. ठीक है ना. HCN के साथ कंप्लीट रिएक्शन चल रहा है, बिकॉज रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. वेयर एज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन क्या है बच्चे, रिवर्सिबल. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता ग्लूकोज, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिंग स्ट्रक्चर. तो रिंग स्ट्रक्चर बच्चे सही है ना. और रिंग स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ रिएक्शन जो एल्डिहाइड के हैं, जो हम सोचते हैं कि अगर रिंग स्ट्रक्चर सही है तो एल्डिहाइड वाले रिएक्शन कैसे आए, HCN, हाइड्रोक्सिलामीन और हाइड्राजीन, ये रिएक्शन कैसे दिए ग्लूकोज ने, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर विद ग्लूकोज हैव इन एक्वा सॉल्यूशन. सारे रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं. और सोडियम बाइसल्फाइड से क्यों नहीं रिएक्ट किया, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल. ठीक है ना. एंड हेंस ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड. ये बच्चे यहां दिया हुआ है. ये देखिए, इन कंट्रास्ट
The aldehydic reactions of D plus glucose with Schiff's reagent, sodium bisulfite and ammonia are reversible, and the concentration of open chain form in the equilibrium mixture is too low. 0.02% बोलता है यहाँ पे, इसने less than 0.5% चलो लिखा है. Therefore, weak nucleophilic attacking reagents such as sodium bisulfite and Schiff's reagent fail to initiate the attack and are unable to disturb the equilibrium to form more of the open chain form. Equilibrium को वो disturb नहीं कर पाते, क्योंकि उनका खुद का इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाते, ये वाला, यानी मोर ऑफ ओपन चेन फॉर्म नहीं बना पाते. ये ग्लूकोज का आगे इक्विलिब्रियम आ गया किसके साथ, विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सो दे कैन नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग फॉर्म विद द ओपन चेन फॉर्म. एज ए रिजल्ट ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो दीज रिएक्शंस. ग्लूकोज दो ग्लूकोसाइड कैसे बनाती है वो तो अब क्लियर है आपको, क्योंकि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा एंड बीटा, तो इसने दो ही ग्लूकोसाइड बनानी, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड. ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोसाइड्स आर एस्टर्स. When glucose is treated with methyl alcohol, it forms methyl glucosides, mean esters, है ना. Me एस्टर वाला OH फर्दर रिएक्ट करेगा, Me एस्टर वाला और नहीं करेंगे. दिस OH, फर्स्ट OH, alpha react करेगा, we get alpha, beta react करेगा, we get beta. So because glucose exists in two forms, so it forms two glucosides. ग्लूकोज जो है बच्चे पहले ही बताया फुल एस्टर्स है. और लास्ट ग्लूकोज का बच्चे टॉपिक हम कवर करेंगे अब, प्रोजेक्शन फार्मूला अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज. ये बच्चे देखिए सिंपल है, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है. ये मैंने जो आपको फिशर प्रोजेक्शन दिखाई है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि आपने कैसे प्रोसीड करना. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ये अल्फा, फिर आगे आपने याद रखना राइट लेफ्ट राइट और राइट. ठीक है. अब जब इसी को कन्वर्ट करते हैं आप बच्चे किसमें, हॉबर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म में. दिस इज द हॉबर्थ प्रोजेक्शन. इसमें रूल क्या है बच्चे कि जो राइट साइड पे OH है उनको लिखना है बिलो द प्लेन. आपने क्या करना है, एक रिंग ड्रा करनी है 6 मेंबर. ये 6 मेंबर रिंग है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन एटम ऑन राइट टॉप कॉर्नर. राइट टॉप कॉर्नर, ये ऑक्सीजन आ गया. ठीक है. द कार्बन एटम टू द राइट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज कार्बन नंबर 1. ये 1 कार्बन है. दिस इज 1 कार्बन, ये 1 कार्बन है. अब रूल क्या है मैंने बताया कि इन फिशर प्रोजेक्शन द OH which are on the right, they are to be written below the plane. उनको बिलो द प्लेन लिखना है. जैसे फर्स्ट कार्बन OH राइट पे है, बिलो द प्लेन. सेकंड कार्बन OH राइट पे है, बिलो द प्लेन. थर्ड कार्बन OH लेफ्ट पे है, अबव द प्लेन. फोर्थ कार्बन OH राइट पे है, बिलो द प्लेन. और जो टर्मिनल CH2OH है, ये वाला टर्मिनल एंड वाला, इट इज ऑलवेज रिटन, इसमें राइट लेफ्ट नहीं देखना, इट इज ऑलवेज रिटन अबव द प्लेन. ऑलवेज रिटन अबव द प्लेन. तो दिस इज अल्फा फॉर्म. जब बीटा ड्रा करेंगे तो बीटा और अल्फा में अंतर कहां पे है, फर्स्ट कार्बन, जिसमें OH राइट है, इसमें OH लेफ्ट है, तो मतलब यहीं पे डिफरेंस डालना, यहीं पे. बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम. देखने की जरूरत ही नहीं है. एक फॉर्म आपने ड्रा कर दी बच्चे, अल्फा फॉर्म ड्रा कर दी, बीटा फॉर्म, हॉवर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है. सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे आपने चेंज करना, जैसे बिलो द प्लेन है, यहाँ क्या आ जाएगा, अबव द प्लेन. तो रेस्ट यू कैन नॉट चेंज, रेस्ट स्ट्रक्चर रिमेन सेम. टर्मिनल बच्चे हमेशा कहाँ होता है, टॉप पे. तो दिस इज बीटा. अब इसको ग्लूकोपाइरानोज क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले बताया कि 6 membered ring containing oxygen is called pyran. तो on analogy with pyran, it is called pyranose form. तो ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है बच्चे, पायरोनोज. ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन है. फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करना हार्वर्थ प्रोजेक्शन में, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया. वी हैव टू ड्रा ए हेक्सागन, हमें एक हेक्सागन ड्रा करनी है विद ऑक्सीजन ऑन द राइट ऑफ कॉर्नर. ठीक है. द ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट साइड ऑफ दिस ऑक्सीजन, दिस कार्बन एटम इज कार्बन नंबर 1. ये कार्बन नंबर 1 है. और इसमें रूल क्या है बच्चे कि जो OH राइट साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन में, दे आर टू बी रिटन ऑन बिलो द प्लेन. और जो OH लेफ्ट साइड पे हैं, दे आर टू बी रिटन अबव द प्लेन. और टर्मिनल जो CH2OH है, टर्मिनल एंड वाला, इट इज ऑलवेज रिटन अबव द प्लेन. इसको हमेशा कहां पे लिखना है बच्चे, अबव द प्लेन. होपफुली बच्चे ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. दिस वाज ऑल अबाउट ग्लूकोज. ठीक है.
कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये बच्चे इसकी वो बोट एंड चेयर फॉर्म दी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। These are the boat and chair forms of alpha and beta D. This is carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is the carbon number CH2O हम कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें पूरा स्ट्रक्चर बच्चे सेम है, सिर्फ यहीं पे फर्क है। इधर देखें, अल्फा में है ना, ये यहाँ पे है, और बीटा में यहाँ पे। दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इज सेम। अल्फा लेस स्टेबल क्यों है बच्चे? देखें, इसमें यहाँ पे ये स्टीरिक हिंड्रेंस, ये देखें, ये तभी इसकी परसेंटेज कम है 36%, और इसकी क्या है 64%। ये OH और OH पास पास है। अल्फा में OH और OH यहाँ से भी दिखता है शायद, देखें इधर देखें, कारण भी है इसका, ये देखें, ये देखें अल्फा फॉर्म कहाँ गई बच्चे, ये है। तो व्हाई इट इज लेस स्टेबल, ये देखिए, ये दे आर क्लोज टू ईच अदर। और इस वाले बीटा फॉर्म में दे आर ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ रिपल्शन कम होगी, वहां रिपल्शन ज्यादा होगी। तो अल्फा फॉर्म इज लेस स्टेबल, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो इसलिए अल्फा की परसेंटेज कम है, बीटा की परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ भी देखिए बच्चे, इसमें भी दिखता है, देखिए OH OH पास पास है, OH OH अपोजिट साइड, दूर दूर। बाकी स्ट्रक्चर तो सारा सेम है ना, फर्क इसी से पड़ रहा है। तो अल्फा फॉर्म इज लेस स्टेबल, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चे ग्लूकोज। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर आगे चलेंगे बच्चे। 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको करवाना चाहूंगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे हम आपका ये कंप्लीट करने का सिलेबस थ्रू बाइज है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चंस।